মাথাটায় এক সাপ, ঘেঁচায় এক সাপ, একটা হাতে ডমরু, একটা হাতে त्रिशूल, ये शिवटा हमर लहे। मैं ए आर बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में दो संत हैं, एक चारी गुरु संतोष केटीआर, दूसरा है संत श्री मुक्नाराम जी अनूप मंडल जी। दोनों ही संत एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दोनों का एक ही उद्देश्य है कि इस संसार विकट परिस्थिति में है, उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। तो फिलहाल हमारे जो झारखंड के सुप्रसिद्ध संत चारी गुरु जी हैं, उनका हम ग्रामीण टीवी में स्वागत करते हैं। जोहार। बाबा जी, आपका भी चैनल में स्वागत है जी। आप क्या মানুষ তো অনু অনু জন্মলাভ পৃথিবী, মানুষের তো শেষ নাই, আর মানুষের অনু অনু ভাবও কাকর মানে একটা নাই। কিন্তু আজ যেটা না কিনা আসল জিনিস, সাঁচা সহি জিনিস, সেই আসলে মানুষ আজ নকলে মানে চলে গেলা। আসলে পূজা না কইকে মানুষ আজ নকল পূজা করত। প্রকৃতি লে যে জীবের সৃষ্টি, প্রকৃতি বাঁচলে জীব বাঁচতা, প্রকৃতিকে ধ্বংস করলে জীব যে একদিন ধ্বংস হয়ে শেষ হয়ে যেতা, এটা আজ আমার মানুষের মালুম নাই। প্রকৃতির উপর অত্যাচার, প্রকৃতিকে মানুষ মানে চিনে ঠিক নেই। তার জন্য তো আমি সব মানুষকেই কবেন যে জীব সব যারা আমরা জন্মলায় এ বসমতাই কোনো ব্যক্তিক দ্বারা আমরা আয়ো নেই, আমরা সেই শক্তিক দ্বারাই আইলাই হোক। যে শক্তি চিরশক্তি, রহে হেলে আহেক আর রহতে, কোনো ব্যক্তি কহিতে ভগবান নাই যে ব্যক্তি মোকে জন্ম দেলা হাত, কোনো ব্যক্তিলে আমি আইলাই হোক। এই যে প্রকৃতি মহাশক্তিক পঞ্চ উপাদানকে যে জীবেকর সৃষ্টি, সেই পঞ্চ উপাদানকে লেখুন চলাটাই মানুষের কর্তব্য, ওটাই মানুষের মানবিকতা বোধ। কবে করো লাগছে সত্যকলে ধর্ম নাই, মিছাকলে পাপ নাই। তো যেটা সত্য, সেই সত্য পূজা না কইকে সত্য জিনিসটাকে এখন মানুষ ছাড়ি দেইকে রঙে আর ছকে ফেসেনে মানে মাতি গেলা দেখে আনে। बाबा जी, एक बात हम बता रहे हैं। देखिए बाबा जी, इनका कहना है कि प्राकृतिक जो है वही हमारा जीने का एक साधन है, समझें। उसके बिना ये जीवन संभव नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हमें बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, समझ गए। हमें बनाने वाला हम लोग कहाँ से बने हैं, कहाँ से बने बाबा ये बात? तो माटी पानी आग हवा और आसमान, ये पंच शक्ति बिना कौन जीव कैसे कोई के जन्म तला बा, कैसे कोई के सृष्टि होता ला। सृष्टि पांच तत्व ऐसा है, उसी से मनुष्य का जन्म हुआ है। कोई देवता वगैरह इनका कहना है कि नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, आप कुर्मी महतो हैं, आप आदिवासी भी हैं, जहाँ तक आप लोगों की लड़ाई है, महतो समाज ही आप विरोध कर रहा है कि भाई चारी गुरु को कुछ पता नहीं है, ये ऐसे वैसे बात कर रहे हैं। যেই জানেই নেই তেই তো মানেই নেই, যেই জানেই সেই তো মানতাক। তো অকর কি মালুম আহে যে অকর নিজেক মগজটা ধলাই হয়ে গেলা হে, পর ধর্মে পরিচালিত হইকে অকর নিজেক ডহরটা আমি বিসরি গেলা হে। ঢের দিনলে যদি কেউ মামা ঘাটটা না যাত, শ্বশুর ঘাটটা না যাত, তো উঠিনটা গেল বাদে ওই আপন ঘাটটাও ঢুকেলাই পারেনি যে কে জানে এটা আমার হেকিনো নেই। তো যেই এই জিনিসটাকে আপন জাতিসত্তাটাকে ওই অস্বীকার করে মেন, তাহলে ওই আপন জাতিসত্তাটা বিসরি গেলা হে যে ওই নিজেও এখন মানে কনফার্ম নাই যে আমি কুর্মি হেকিও ন লইও, এরকম অবস্থা। तो जो लोग ऐसा सोच रहे थे, चारी गुरु जी ने स्पष्ट कह दिया है कि पहले आप अपना अस्तित्व को देखिए कि आप कुर्मी है कि नहीं। बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक और बात बताइए, आप ही के जात समुदाय ये कह रहे हैं कि एक बार चारी गुरु जी से ये पूछिए आप कि हम लोग जो चड़क पूजा करते हैं उसमें माँ शिव पार्वती की पूजा करते हैं, तो क्या चारी गुरु उसको भी रोक देंगे? हमरा कोई पार्वती तो पूजा करियो नहीं।
আগে তো জানে হেতি যে এটা কাকর পূজা। আর্জিকেল কালচারে শিব আর হামর অনার যে কালচারে যে বুড়া বাবা একর মধ্যে বহুত অন্তর আহ ভাই। এই আমরা বুড়া বাবাক পরব করিও আর সারা পৃথিবী যেটা পূজা হবে সারা তোর ভারতবর্ষে এই বুড়া বাবাক পূজা কেউ করত নেই না। যদি করত তো কহেন বলা কাশিন যে বিশ্বনাথক পূজা হবে তো উঠিন ভক্তা কত না গিলা ঢুকত। আমার পূর্বজরা কই গেলা তো মানলে শিব নাই তো পাথর, আমি পাথর এক পূজা রেখিও, আমি পাথর এক পূজা করিও, কত না ভক্তা ঘুরত। এটা ছোট নাগপুর এক, এটা তোর মানে সংস্কৃতি এক, এটা ছোট নাগপুর এরিয়ায় আমার এটা হেবে বুড়া বাপেক পরব। ওই কি জানে যে বুড়া বাপেক আমরা কোনটা করেই हो जन्म न बिहा न मरण वो कठिन पत्ता है नहीं खे। ऐसे भी तो आदिवासी जो है कि जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत पत्थर का पूजा करते हैं। तो इटा जे हमर আমি ও যেসন মানে একটা মানুষ আহে ওকর মাথাটাই আহে কি সাপ, ঘেঁচাই আহে সাপ, একটা হাতে ডমরু, একটা হাতে ত্রিশূল, এই শিবটা আমার লহে। আমার পূর্বজরা কই গেলা তো মানলে শিব নাই তো পাথর, আমি পাথর এক পূজা রেখিও, আমি পাথর এক পূজা করিও। तो जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि आप चारी गुरु को बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसको ऐसा सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जो चारी गुरु चाहता है वही आप रिलीज करते हैं, तो भैया आप लोगों का सवाल भी मैंने पूछा और उनका सटीक जवाब भी आप लोगों ने सुना। अपना राय जरूर रखिएगा। बाबा जी आप राजस्थान से आए, ये चारी गुरु हैं आदिवासी के, और इनका भी बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हमारे समाज को कहीं ना कहीं भटकाया गया है, हमारे समाज के लोगों के साथ में गलत हुआ है, इन्हें अलग तरह से परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि हमारा समाज ऐसा नहीं है। ये वैज्ञानिक पद्धति को मानते हैं, ये अपने समाज को पढ़ाना उचित समझते हैं, और ये जो है मने टोना टुटका ये सब से इनका भरोसा नहीं है। आपका भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं, आपके भी आप जिस मंडल से बिलोंग करते हैं उस मंडल में भी यही है कि आप भी कहीं ना कहीं धरती माता को बचाने का मुहिम है। तो क्या मैसेज रहेगा दुनिया के? जय धरती माता। इनकी जो भाषा में झारखंडी भाषा में, और इनका उद्देश्य ये है कहने का कि हम प्रकृति रक्षक हैं, प्रकृति पूजक हैं, हम पाखंड पूजक नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ये राकड़ी डोरों में विश्वास नहीं करने, बांधना कड़ा वगैरह नहीं करने। तो इन्होंने कहा ये प्रकृति से ही हैं, प्रकृति कुदरत से ही बनी है, ये कुदरत प्रकृति से ही बना, और जीव की भी जो जीव प्रकृति से हुआ। ये प्रत्यक्ष है कि हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है जो पानी की बूंद से हुआ है, और उसमें हमारे शरीर में हड्डियाँ, संबड़ी, नाड़ियाँ, खून, मौत, सोचने समझने की शक्ति वो कुदरत से बनी, और इंसान ही सब कर रहा है। एक अच्छा काम करने वाला भी इंसान है तो एक बुरा काम करने वाला इंसान है, तो बुरे काम करने वाले का विरोध करना अच्छे काम करने अच्छे आदमी का कर्तव्य फर्ज बनता है। तो हमारा उद्देश्य भी है कि इस प्रकृति के साथ में जो कोई तांत्रिक कलाओं से इस तंत्र मंत्र के द्वारा जो खिलवाड़ कर रहा है उनका हम विरोध करते हैं, और उसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ हैं। और आपका भी ये उद्देश्य है, तो हम अगर आप और हम मिलकर और उनका विरोध करें तो हम आराम से वापस इस प्रकृति को संतुलन ला सकते हैं। कि उनके साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, जो कुछ भी दे रही तो धरती माता दे रही है, जल जंगल और ज़मीन को बसाना है, जल जंगल और ज़मीन, क्योंकि मैं ये दे रही है, ये ज़मीन दे रही है। अगर ज़मीन पे बरसात होगी तो वृक्ष पैदा होंगे, वृक्ष रहेंगे, फल फूल होंगे, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। और अगर इस पे बरसात नहीं होगी तो हम होंगे। तो इसके बारे में जो खिलवाड़ हो रहा है वो हमारा उद्देश्य है कि ये कुदरत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। बरसात क्यों नहीं हो रही है, भूकंप क्यों आ रहा है, तूफान क्यों आ रहा है, ज्वालामुखी क्यों आ रही है, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो रही है, भाई भाई बहन भाई माँ बेटा पति पत्नी लड़ क्यों रहे, साधु भी लड़ रहे, तो फिर इस धरती की रक्षा कौन करेगा। इसलिए हम उद्देश्य से लेकर आए, आपसे हमें मिलकर बहुत खुशी हुई, और जो आपका उद्देश्य और हमारा एक है, और अगर हम जो मिलकर कर काम करेंगे तो इस धरती पे वापस अमन शांति आएगी, ये हमारा उद्देश्य। क्या बोल हाँ हम तो माने हिंदीटा कोहेलाई उतना ना पाल लो। ग्रामीण टीवी में बता दूं, ये जो चारी गुरु संतोष केटीआर जी हैं, ये सिर्फ झारखंड में ही लोग इनको नहीं जानते हैं, इनको बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक भी आप जाते हैं ना, तो कई स्टेट में जाते हैं और लोगों को मेन स्ट्रीम पे लाने का काम करते हैं। खास करके इनके धर्म जो आदिवासी कुड़मी समाज है वो कहीं ना कहीं भटका हुआ
है बाबा की नज़र में, और बाबा के कई वीडियोज हमारे चैनल में आप लोग देख सकते हैं। इनकी पूरी बात आप लोग को समझ में आएगी। जी बाबा जी, इनके बारे में क्या? हाँ माने हमी तो बुझी पाबलियो जे बाबाजी जेटा कहे गला বাস্তববাদী একরা হেকত বিজ্ঞানসম্মত যেটা কি প্রকৃতি লেইকে জীবেকর সৃজন প্রকৃতি লেইকেই বিনাশ প্রকৃতি বাদ দেইকে কোনো কিছু হেবেলায় পারেক নি হেবেলায় পারতেক নি যেই পরিকল্পিতভাবে রূপ আকার দেইকে আর মানে আপন মতামত ইহা কইকে যেটাই মানে গড়িকে করেলাই যে হাতিটা গোটায় পেঁদলা জিনিস বাবু এগুলা সত্য জিনিস নো এগুলা আমি আগু ঢের দিন লে করলাই হতো। यानी बाबा जी, इनके कहने का मतलब हुआ कि जो मूर्ति पूजा हो रहा है, जिनको लोग बना रहे हैं या तस्वीर को बना रहे हैं, विशेष भगवान का रूप दे रहे हैं, उन पर हमारा यकीन नहीं है। आपका यकीन है क्या? देखिएगा, हमारे शास्त्रों के अनुसार कुछ महात्माओं ने लिखा है कि मूर्ति पूजा हमारा धर्म ही नहीं था। हम मूर्ति पूजक थे ही नहीं, हम तो प्रकृति पूजक थे। हम प्रकृति पूजक थे, पशु पक्षियों की रक्षा करते थे, वृक्षों को काटने नहीं देते थे, पहाड़ों को तोड़ने नहीं देते थे, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारी ये जो जीवन शैली है। ये भारत का एक विशाल देश जहां आप लोग दोनों को जीने देगा आदमी। देखिएगा कि जब भी धरती पे कोई संकट आया है तो संत महात्माओं ने इसे आवाज उठाई है और उस पापियों का नाश किया और उनको हटाया धरती पे। हाँ बाबा जी, जीने देगा आप लोगों को। কবে করলাই ঐদ্যবাব্দ শতান্তে মৃত্যুর বই ধ্রুব আজ হোক কাল হোক জীব জন্মলয় কর মরণ আহেকে তবে তুই সাঁচটা সহিটা সত্যটা কইকে যাই আইলাই হো চলি যাবে করলে দোসরা কোনো ভিনু কথা নাই खे যেই আইলা হে বসম তাই ওকেই যাই হেতে তো আমি পেঁদলাটা কাহে কহিকে যাব আমার যেটা মনে ভাব আমি যেটা সত্য যেটা জানো সত্যটাকে লেইকেই আমার পূর্বজরা মানি গেলা हमको সত্যটা কহিকেই যাই হেতি যতনাটুকুন আমার এ দেহটাই আমার নিকাশটা বহুতি বাবু ততনাক্ষণ আমি এ সাত সত্যটাই কহব ও কাকরো মানে কেউ মানে দমে লোকে একদিকে তা তখন আমি মানে অন্য কহব ওটা আমার জীবনে হেতি নেই কাকরোই उटा हमारे जीवन में होती नहीं, वो मेरे जीवन में नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कहे हैं। अभी आप समझ में आई कुछ? पेंदला मतलब असत्य होता है। कहा कि भाई हम ऐसे पाखंड से दूर ही रहेंगे और हम अपने आप को कभी नहीं समझेंगे। हाँ, ये बात बड़ी ठीक लगी है। तो ये जो बाबा ऐसी बात है कि आपका हमारा उद्देश्य एक ही है। ठीक है, भाषा के में थोड़ा फ़र्क है, बैठकर सुलह कर देंगे, पर इस उद्देश्य से हम जब एक होंगे तभी इस प्रकृति की रक्षा होगी। अगर हम एक नहीं हुए तो प्रकृति की रक्षा नहीं होगी। जैसे ये हाथ की उंगलियां बराबर नहीं है पर भोजन करते तो बराबर होती हैं, इसी प्रकार हमारे विचार मिलेंगे तो प्रकृति की रक्षा जरूर होगी। यही हमारा उद्देश्य है। तो ये थे संत चारी गुरु संतोष केटीआर और ये संत मुकनाराम जी, दोनों चिंतित हैं। एक अपने विशेष कम्युनिटी कुड़मी महतो पर चिंतित है कि हमारे जाति धर्म के लोगों को बहकाया गया है, भटकाया गया है और उन पर शासन करने के लिए एक अधिकार जमाया गया है। और एक तरफ बाबा जी हैं जो पूरे भारत के लोगों से आह्वान करते हैं कि धरती माता के साथ में विशेष कम्युनिटी कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है, इसे रोकना हमारा परम धर्म है। आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत जानकार हैं। आज देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर कई तरह के मुद्दे हैं जिससे लोगों को बरगलाया जा रहा है और समाज में एक अधिपति जमाने का कार्य हो रहा है। तो तमाम बातों को आप लोग किस हिसाब से देखते हैं? और अंत में बाबा कुछ बोलिएगा, विशेष संदेश आप। तो प्रकृति के जो हमरा पूजा करियो इटा तो परमान बाबू ये 10 तारीख ले आज कोई तारीख हेलो 11 तो काल ले तो हमार 7 दिन जंगल जिया माने आंदोलन जेटा हमरा कर्मसूची तोर पुरुलिया बांगाले तोर चलो हो जंगल जियावा आंदोलन माने गाछपाला के रक्षा करा। तो ताकत जने तो पानी देवा शुरू हो गला है, दैनिक तो पानी देती हमर लोके गाছে दैनिक पानी देती गाछ के रक्षा करा। ये वृक्षकले सम्पद किछु नाई, वृक्ष हेलो तोर देवता। ए गाছে তোকে বাবু অক্সিজেন দেও, এ অক্সিজেন আমরা পাই हो তবে কানি বাঁচি আই हो। दुनिया शोषा करा संसारे जतेक जेला तुई गढ़ी के ठाकुर देवता करो लाई सिगला जदि तुई कोनो ना राखसी कोनो तोर जीवने क्षति हेतो नहीं। और जदि तुई कहिस जे आमि एकटा गाछपाला राखब नहीं तो संसारटा ध्वंस हो जातो।
কেন অক্সিজেনটা তুমি কাহালে পাবে গাছে पात रे गाছে फूल रे। जी, इनका कहना है कि 10 तारीख से लेके आने वाले 17 तारीख तक एक मुहिम छिड़ा हुआ है बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में भी कुछ कुड़मी आदिवासी जो हैं वो लोग पेड़ पे पानी दे रहे हैं कि पेड़ जिंदा रहे, पौधा लगाए, उस पर पानी डाला जा रहा है ताकि जीव जो है कि सुरक्षित रहे। बहुत माने ये इसको हम क्या कर सकते हैं कि मेरे पास सुनने वालों भाई लोग, मेरे पास शब्द नहीं है। पेड़ पौधे को बचाने का जो मुहिम कुड़मी जाति के लिए, हम तो इनका विचार से हम खुद सहमत रखते हैं, तभी मैं इनको खोज कर इनसे मैं बात करता हूँ। देखिएगा कि ये जो हमारा कर्तव्य बनता है, जैसे हम भोजन करते हैं तो हमें पशु पक्षियों की भोजन कराना, उनको पानी पिलाना, वृक्षों को पानी पिलाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है और इनकी रक्षा करना ही मनुष्य का कर्तव्य धर्म है, ऐसा शास्त्रों से। মানে 1922 সালে আমার সমাজে যখন অন্য মানে লোক ঢুকি গেলাত, অন্য ধর্ম যখন আমার মধ্যে ঢুকি গেলায়, অন্য সংস্কৃতি যখন আমার মধ্যে ঢুকি গেলায়, তখন বেশ কিছু লোক আপন ধর্ম আপন সংস্কৃতি বিসরি যাইকে অন্য বাটে চলি যাহাত। আর সেইটা আরও কেউ কেউ কহত কিনা যে তোর লোক মানে ওগিলাকে কহে ঠিক যে তুই কেসে কইকে আদিবাসী হেবে, তোর আদিবাসী মানে ভাষা সংস্কৃতি যে সবে হারাই গেল। তো হ্যাঁ বাবু, আদিবাসী যদি সংস্কৃতি হারাইয়ে গেল, আজ বন জঙ্গল গিলা তোর উজাড় হয়ে গেল, তো হাতি গিলা তোর ঘাট ঢুকি যাও, তো হাতি গিলাকে তুই বন্য পশু কবে শিখ না তুই মানে গৃহপালিত পশু কবে শিখ। তুই ঘাট ঢুকলো আর টাউনে ঘুরলো, বন্য পশুই হে কি তেসনে আমরা যে আদিবাসী, আদিবাসী কথাটা মানে হলো আদি মানে হলো আগে, আর বাসী মানে হলো তোর বাসিন্দা, মানে যারা আগুলে বসবাস কইকে হাত। যেসন পানি টাইন তোর মানে ঝিনুক আহো, গোগলি আহো, মাছ আহো, মানে কতেক কিছু তোর সাপ আহো, বেঙ্গ আহো, সবে আহো, তো যতেক জীব আহাত ওগুলাকে কতিক জলচর ন, কতিক ননি মানে জলের পানির হত্যা করছেন ওগুলো জলচর। ঠিক আগুলে যারা বসবাস কইকে আহাত সেইগুলাই হলো তোর আদিবাসী। এ তো ব্যাপার। তো যেই কহেস ওটা আমি ভুল করি কহেস, কারণ অকর মগজে কই যে ই তো এটা নাই কে। আরে বাবা, তুই জানিলে যে আজ যখন সরকারে বনটাকে কাটি দিলেও তখন বাধ্য হইকে বন মানে পশুগিলা তোর ঘাট ঢুকি যাও। ঠিক তেসনে চালাক চতুর শ্রেণীক মানুষে নানাভাবে নানা কৌশলে মানে তোর উদার সরল প্রকৃতিক মানুষকে মগজ ধলাই করে খাতিরে বই পথি লেখিকে হামর লোককে ভটকাওলা থেকে হামর লোককে উল্টা বাটে লেগে গেল হাতিক। মেন্তুক তোর যেটা পরম্পরা যেটা তোর ইহা সেটা তুই যেসন বনে পশু তুই বনে মানে তোকে বনজন্তুই হেবে, গৃহপালিত নি হেবে। তো আদিলে যারা বসবাস কইকে হাত ওকরা আদিবাসী হেক। তবে মনে করে হামর ঘর হেলি আরসা থানা পাথরডি, আর পাথরডি 100 ঘর কুড়মি হাত, উঠিনের মধ্যে তোর 5-6 ঘর হাত মহলি, 4-5 ঘর হাত তোর তেলি, আর 2 ঘর হাত কামার। তো আচ্ছা কহেন বলা কামার গিলাই লেখে পাত্তা লেখে মানে কহে পাত্তানো নি, কহে পাওতানো নি যে আমি পাথর ডেকে হেকিও ওটা কথানো নেই। বুঝে পারলে একটা সমাজ এক লোক একে ঘর হাত, তো ও তো কথাক যে আমার এগাটাই ঘরে কিনো নি কথাক কত। তো সেই সময় যদি কেউ কহত না 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 তুই কহেলাই পাবে নি চই গাম একলো হইস তো ওটা কে তো ঠিক তেসনে আগুলে যারা এক জায়গায় বসবাস কইকে হাত বাবু সবাই ওগুলা আদিবাসী। আমরাকে তো পরিকল্পিত মাফিক আমরাকে আদিবাসীলে ছুটকারা কই দিলা হাত। আমরা রয়েলিও পরাধীনে স্বাধীন, আর আজ স্বাধীনে অধীন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যখন ব্রিটিশ সরকার রহেলা তখন আমরা পরাধীনে রহেলিও, কিন্তু হামর জাতিসত্তাকে ওকরা মান দে রহতিক, আমরাকে তখন এসটি তালিকাভুক্ত করে রহত। যখন আমরা 1947 সালে স্বাধীন হয়ে গেলিও তখন 1950 সালে আমরাকে এ স্বাধীন ভারতেই আমরাকে পরাধীনে লেগিকে ঢুকাওলা। তো কেসে কাহে ঢুকাওলা ন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আমরাকে আদিবাসী করে রহত, আর আমরাকে ছোটনাগপুর সিএনটি অ্যাক্ট যেটা মানে ছোটনাগপুর টেন্ডেন্সি অ্যাক্ট, তো এই তিনটা সিএনটি অ্যাক্ট লাগু করে রহত। সিএনটি অ্যাক্ট লাগু করে মতলব হলো যে আদিবাসীর এক জায়গা জমি বেচাতেন নেই, ওকরা জমি কেউ লে পাওতা নেই। তো যখন ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন এলে
তখন বড় বড় পুঁজিপতি ধনীরাকে লেইকে তো সরকারে মানে বৈঠক এলেন, ওকরা তো মানে দেখে লাগলা যে কেসে কইকে ভারতকে আমরা দেশকে কেসে কইকে চালাও চালাক চতুররা দেখলা যে এইটাই কিছু করে গেলে তাহলে কলকারখানা এইসব করে লাই হতো কারখানা মারখানা, তো কারখানা যদি করে যাবে তো কাহা করবে, তো যে জায়গাটাই করবে এটা তো তোর কুর্মিক জায়গা, তো কুর্মিক তো আদিবাসী, কুর্মি তো সিএনটিকে ভুক্ত হাত, তো কুর্মিক জমি তো লেওয়া চলতেও নেই। তখন পরিকল্পিত মাফিক ওখরা দেখলা যে বাঁশ রহেগা ন বাঁশুরি বাজেগা, তো ই তোর কুর্মিকে তোর আদিবাসী লিস্টে ले তোকে বাদ দেবে লা হেতু, তো এ বাদ দেইকে তো আজ আমরা কে পরিস্থিতি। নালে তুই যাহা দেখবে যে কোনো টিনটা যেটা দেখবে কারখানা কহে আর রেল লাইন কহে আর কত কিছু তুই কহে, হে বাবু কাকর জমি হেলা है। আর আমরা যদি আদিবাসী লইহ तो तुम आज इतना कुर्मी कैसे कोई कह लियो, छोटो नागपुर एरिया हमर 40,000 एकरो बेसी बस्ती आही कुर्मी, तो एक दिन हेलाई तब कि हमरा आज बिल्कुल बाबा जी आपकी बात आ गई है। और अगर कुर्मी समाज आदिवासी की मांग करता है तो किसी का पेट में अगर दर्द हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार इनको एसटी सूची से बाहर निकाला है, तो सरकार से मांग कर रहा है, जायज़ है। जहाँ तक अगर कोई विरोध करता है तो उनका हम सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल बाबा जी अंत में और कुछ बोलिए, क्योंकि वो चारी गुरु हैं, वो बोलते जाएंगे, अभी दिन रात बिता देंगे। परंपरा को रखें बरकरार, और जो ये कल कारखाने वगैरह नहीं थे, जब पूरी प्रकृति ही हमें जो कुछ देती थी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, प्रकृति से मिलता था, तो ये बात हम अगर वापस करें तो कल कारखाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो प्रदूषण है और इसे इस धरती का विनाश हो रहा है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है सभी को, मगर हमारे आपस की एकता नहीं हो रही। हाँ 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 ওটা তো সব সেটা তো বাস্তব কহত, কিন্তু যাকরা এটা তো লাভে কঙ্কই যেকরাই করলা হাত ওগুলা তো লাভের জন্য করলা হাত না। बस यही बात ही कि अगर प्रकृति की रक्षा करनी है तो हमें जो परंपरा को बरकरार रखना पड़ेगा। हमें जो एकजुट होकर हमें ये सारी भ्रांतियाँ मिटाकर हम सभी लोगों को एक होकर इसका विरोध करेंगे। तो चलिए, ये दोनों संत मानवता का संदेश दे रहे थे, धरती माता को बचाने का संदेश दे रहे थे। जो इस बात को समझ नहीं पाए हैं अपना जरूर कमेंट कीजिएगा, अपना सवाल भी रखिएगा। हम आने वाले समय में फिर दोनों संत का इंटरव्यू लेंगे। हो सकता है बाबा चले जाएंगे राजस्थान, इनसे हम बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन संतोष केटीआर जी हमारे बोकारो में रहते हैं, हम इनसे कभी भी मिलकर आपके सवालों का जवाब हम पूछ लेंगे। और बाबा के यहाँ अगर हम पहुँच गए तो बाबा जी आपसे हम पूछ लेंगे। कुल मिलाकर ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। आप लोग का छोटा भाई AR बोकारवी लेता है विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय जोहार, जय धरती माता। जोहार सब